Good morning, students. Today we are going to discuss our previous topic and our next topic, that is calculation of degree of dissociation, that I have already discussed in previous class, but for again I am also discussing if there is any doubt, because it is connected with the degree of association. First of all, we are going to see that what is degree of dissociation is. The main heading will be the main heading will be calculation of degree of dissociation. Hence, first of all, we are going to see what is degree of dissociation. We represent degree of dissociation with alpha. It is defined as the it is defined as the fraction of the total substance that undergo dissociation. कि मोलिक्यूल का वो हिस्सा जो डिसोसिएशन में टेक पार्ट कर रही है, फ्रैक्शन है आपका, दैट इज वी कैन आल्सो डिफाइन इट बाय फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स dissociated upon total number of moles taken. So we are considering an electrolyte. Considering an electrolyte that dissociate to give n number of ions. Previously, I have also discussed that how n number of ions can be dissociated. Let us take an example. For an NaCl, NaCl dissociate in Na plus and Cl minus. Here we are getting two ions. Therefore, the value of n will be 2. Because since we know that if we have taken the 1 mole at time t is equal to 0, we have taken 1 mole, then at time t is equal to 0, the sodium ion and the chloride ion will be formed, the amount will be 0. बट एट टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में किसी टाइम टी पे बेटा अगर इसमें से कोई अल्फा मोल डिसोशिएट होते हैं आपके, तो अल्फा ही Na प्लस बनेंगे, अल्फा ही ये बनेंगे, तो वी आर गेटिंग हेयर 2 अल्फा. The main purpose here, therefore the value of n is 2. So take a common example. A is an electrolyte which gives A is an electrolyte to give B plus C and n number of ions. Therefore at time t is equal to 0, if there is 1 mole, then B and C and so on will be 0 moles. Therefore these are initial moles. Moles. But at time t is equal to इक्विलिब्रियम के टाइम पे बेटा अगर इसमें से अल्फा मोल डिसोशिएट होते हैं आपके, दैट इज 1 minus alpha, therefore the number of ions of B will be alpha and C will be alpha. Therefore at equilibrium, we are considering at equilibrium the total number of ions. बेटा इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो आपका कंटेनर होगा उसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स of ion will be 1 minus alpha plus n alpha. If we are taking the common, then 1 plus alpha n minus 1. Since we know that normal colligative property कि बेटा जो कैलकुलेटेड है, नॉर्मल मीन्स कैलकुलेटेड, मीन्स थ्योरेटिकल, जो हमने अपनी कॉपी पेन पे निकाल ली है, थ्योरेटिकल जो हम एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है, हम ये मानकर चल रहे थे कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट नहीं होगा. कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to the
number of moles, number of moles of solute particle taken. We have taken here 1 mole. Previously we have taken the 1 mole of an electrolyte, that is A. Okay, going next on abnormal, that is abnormal colligative property. कि बेटा हमें ऑब्जर्व किया हो क्या हुआ, हम सोच रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे एक, लेकिन हमने क्या देखा कि जब वो हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला सोल्यूट तो वो डिसोशिएट हो गया, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए आपके। तो एबनॉर्मल बोले हम, या हम क्या बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड बोले, या हम क्या बोल सकते हैं इसे एक्सपेरिमेंटल। ये तीनों टर्म एक ही चीज है बेटा, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव property is directly proportional to the number of solute particles after dissociation। क्योंकि हम डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं तो हम क्या मानेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। और हमने क्या देखा डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ आयंस हमें कितने मिले थे, हमने टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन के बाद कितने मिले थे, हमारे पास ये वैल्यू आई थी। आफ्टर डिसोसिएशन वी गेट दिस वैल्यू, therefore we are going to write here 1 plus alpha n minus 1. Here alpha is degree of dissociation, n is the number of ions produced after dissociation. Hence, since we know that I is normal colligative property, normal value of abnormal value of colligative property upon normal colligative property, हमें बेटा ये पता है। तो हमें क्या पता चला यहाँ से आई की वैल्यू एबनॉर्मल कितनी है बेटा, एबनॉर्मल की वैल्यू तो ये है, एबनॉर्मल वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या बेटा आपकी 1, की नॉर्मल मतलब इतनी 1 मिलनी चाहिए थी। तो हेयर व्हाट वुड यू कैन से दैट आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो अब बेटा अगर आप यहाँ से अल्फा को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इफ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स लेट्स से देखो बेटा ये 1 आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। तो बेटा यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो बेटा जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो रहा है तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 n माइनस 1। बेटा अगर इसी कंसेप्ट को अगर मैं मास के रिस्पेक्ट पे लूं, कल हमने क्या देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, हमने ये अब पहले देखा था। तो मतलब जो फॉर्मूला आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर एबनॉर्मल बाय नॉर्मल था तो इसमें क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला नॉर्मल, मैं इसको दूसरी तरफ लिख देता हूँ। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन मतलब नॉर्मल मीन्स कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब मैं नॉर्मल को कैलकुलेटेड बोल सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ mc, और ऑब्जर्व एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व किया तो mo। तो आपकी आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से mc अपॉन mo। अगर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ आपको इस फॉर्मूले के अंदर तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। बेटा इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या बन जाएगा, अगर मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ एम सी अपॉन एम ओ माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या बनेगा बेटा एम ओ एम सी माइनस एम ओ अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो बेटा क्या है आपका एम सी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ इंटू एन माइनस 1। तो अगर मोलिकुलर वेट के रिस्पेक्ट में अगर मोलिकुलर मास के बारे में बात की जाए तो अल्फा का फॉर्मूला आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये रहेगा, एल्स आपका क्या रहेगा अल्फा क्या होगा आई माइनस 1 एन माइनस 1। तो आपके ये दो फॉर्मूले यहाँ से हमें डिस्कस करे हैं। ये आई की वैल्यू आपकी कहाँ से आती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लगभग। ठीक है बेटा जी, आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैलकुलेशन ऑफ degree of association
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हमारा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बेटा एसोसिएशन क्या होता है, पहले देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो आप क्या बोलोगे बेटा, इसकी बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी, बस लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिसोसिएशन की जगह हम क्या लिख देंगे, एसोसिएशन या एसोसिएटेड हुआ हमारा मॉलिक्यूल, तो हम ये लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज दी, it is defined as the fraction of the total substance which get dissociated, which get dissociated, sorry, associated। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से अल्फा क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा बेटा देखो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कुछ बुक्स में अल्फा भी लिखा हुआ है, कुछ बुक में अल्फा एसोसिएशन भी लिख देते हैं, और कुछ बुक में बीटा भी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा। यहाँ से इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करूंगा। देखो ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। देखो क्या मतलब, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके एक बार सुनना, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेना। कंसीडर एन मोलिक्यूल, आपने एन मोलिक्यूल्स को कंसीडर किया ऑफ द सोल्यूट दैट इज ए। मैंने ये माना कि जो ए है मेरा वो सोल्यूट ए एसोसिएट करता है टू फॉर्म ए एन, और यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, एन ए गिव्स आउट ए एन। ये मतलब है बेटा। इसको समझने के लिए एक बार हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो देखो एक बार ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने क्या लिया, दो मोलिक्यूल CH3COOH लिए, एसिटिक एसिड, और मैंने आपको कल बताया था कि जो एसिटिक एसिड होता है वो बेंजीन में क्या कर जाता है, एसोसिएट करता है। बेंजीन में क्या करता है आपका एसिटिक एसिड एसोसिएट करता है, बाकी में क्या करता है आपका, अगर वाटर के अंदर एसिटिक एसिड है तो आपका क्या होगा, डिसोशिएट होगा टू गिव एसीटेट एंड H प्लस आयन। देखो बेटा, अगर इसमें ये बेंजीन के अंदर हमने एसिटिक एसिड को डाला तो क्या होगा, दो मोलिक्यूल एक में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्चुअली ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर हमारी। इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले डिस्कस किया, तो एक बार देखो, अगर आपने शुरू में दो मोल्स लिए हैं किसके, एसिटिक एसिड के, टाइम t इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे कोई एसोसिएशन नहीं हुई है आपकी, उस टाइम पे आपकी कोई एसोसिएशन नहीं हुई, लेकिन आपने टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो बेटा सब मान के देखिए, अगर इसमें से टू में से, ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, अगर टू में से अगर मैं इसके 200 मोल्स लेता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं इसके 200 मोल्स लेता हूँ, 200 मोल्स में से मैंने बोला कि ये 100 एसोसिएट हो गए, तो इधर कितने में बनेंगे, ये सिर्फ 50, क्योंकि पेयर में बनते हैं बेटा। अब आपको पता कैसे चला ये वैल्यू 50 आएगी, क्या आएगी, आपको ये वैल्यू से पता, आपने क्या किया, 100 थे, 100 को क्या किया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया। अब चलो मैंने तो आपको बता दिया डाइमराइज, अब आपको तो नहीं पता ना ये क्या करेगा, ये डाइमराइज भी कर सकता है, ये ट्राइमराइज भी कर सकता है। तो ये वैल्यू, इसी को हम क्या मान लेंगे, देखो ध्यान सुनना, इसी को मैंने क्या लिखा है, अगर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। अब मैं इसको कैसे, अगर मैं इसको वन के एक मोल के रिस्पेक्ट में लूँ, क्या लूँ मैं, अगर एक मोल के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, ए गिव राइज टू ए 1/n, अगर मैं एक मोल लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर ये 1 मोल थे तो ये 0 है, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में अगर इसमें से 1 माइनस अल्फा होते हैं तो ये क्या बनेंगे बेटा, आपके ध्यान सुनना, ये अल्फा बाय n हो जाएंगे।
ठीक है, ये आपके इनिशियल मोल्स थे शुरू में जो आपने लिए, जो आप नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान के चल रहे थे, और ये वैल्यू क्या आपकी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो आपने क्या देखा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ध्यान से देखने को, फिर हमारे पास स्पेस काफी होगा। एक सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स सी एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium the number of moles of A के बेटा कितने मोल हैं आपके पास, वन माइनस अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा, और A माइनस एन के कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन के कितने मोल्स हैं, अल्फा बाई एन। अब आप मुझे एक बात बताइए, उस कंटेनर के अंदर तो ये सारे मोल्स होंगे आपके, उस कंटेनर के अंदर तो आपके सारे मोल्स होंगे आपके, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, therefore the total number of moles of ions कितने होंगे बेटा आपके, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, इन दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि दोनों के उस टाइम पे कंटेनर के अंदर तो आपके दोनों हैं, उस कंटेनर के अंदर तो आपके दोनों, इस वजह से। अब देखो नेक्स्ट, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ वन माइनस अल्फा को, अगर मैं कॉमन लेता हूँ वन प्लस अल्फा, तो हमारे वैल्यू क्या आएगी, वन बाई एन माइनस वन। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट, अब आपने को क्या पता है, अब आपको क्या पता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सीपी लिख रहा हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सीपी, ये कनॉट प्लेस नहीं है, आपका सीपी है, ध्यान रखना, सीपी मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये क्या आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल टेकन, number of solute particles taken। तो और वो कितने आपके पास, वन। ठीक है बेटा, एबनॉर्मल, और ये आपकी क्या है, थ्योरेटिकल, जो आपने कॉपी पेन पे चेक किया कि मेरे पास एक मोल होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्या बेटा आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, और आफ्टर एसोसिएशन बेटा पार्टिकल्स कितने हैं आपके, वन प्लस अल्फा वन माइनस एन वन बाई एन। अब आपको क्या पता है बेटा आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस अल्फा वन बाई एन माइनस वन अपॉन, और लिए कितने थे वन, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वन प्लस अल्फा वन बाई एन माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं ये लिख सकता हूँ वन माइनस आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा वन बाई एन माइनस वन। तो यहाँ से मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आया बेटा, आई सॉरी अल्फा की वैल्यू निकाली थी मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई आपकी, आई माइनस वन वन बाई माइनस वन, बहुत छोटा सा चेंज आया, एन की जगह क्या हो गया आपका, वन बाई एन हो गया है। जैसे दोबारा एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन वन बाई एन माइनस वन। ये आपका कब होगा, जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये क्या आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया हो तो हमने इससे पहले आई अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, आई माइनस वन एन माइनस वन। मतलब अगर केस है डिसोसिएशन का, अगर केस है डिसोसिएशन का, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है बेटा, आगे देखो, अब जैसे कि हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है आपकी, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास बाय एमओ, ये आपका इनवर्स होता है। तो अगर मैं आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, इससे पहले मैंने आपको बताया था ना आई की वैल्यू एमसी बाय एमओ कैसे आई, देखो ऐसे यहाँ से आई आपकी, यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कैसे आई, एक बार दोबारा से देख लेना, फिर भी डाउट हो, फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद अल्फा की वैल्यू क्या आई आपकी, एम सी अपॉन एम ओ माइनस वन वन बाई एन माइनस वन। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आई, एलसीएम लेने के बाद एम सी अप माइनस एम ओ
अपॉन 1/n-1। अगर मैं 1/n-1 को भी सॉल्व करूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, mc माइनस mo, और बेटा ये क्या हो जाएगी हमारी n 1 माइनस n, ये वैल्यू हमारी होगी। इसको भी अगर मैं और डिटेल में लिखूं तो मेरी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, mc माइनस mo अपॉन mo इंटू n/1 - n। तो आपका फॉर्मूला इन केस ऑफ मोलिकुलर मास आपका ये रहेगा। ठीक है बेटा जी, ध्यान रखना, कोई डाउट है तो पूछिए, पूछ सकते हैं आप कभी भी। ओके, अब यहाँ से आपको क्या पता चला है, देखो ये आपका यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है। फिर भी एक बार दोबारा से बता देता हूँ बेटा, देखो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आई की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, ना तो नीदर सोल्यूट नीदर डिसोशिएट, डिसोशिएट आपका जो आई मतलब जो आपका सोल्यूट है, नीदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, कोई कुछ नहीं हो आपका, नीदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ सोल्यूट। लेकिन अगर आई की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, आई नॉट इक्वल टू 1, मतलब या तो एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है। अब अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब डिसोसिएशन हुआ है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है, क्योंकि कई बार नेचर ऑफ सोल्यूट पूछ सकते हैं, बताओ, तो वहां पर आपको आई की वैल्यू चेक करनी है कि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है कम आ रही है, तो यहाँ पर अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, आई माइनस वन 1/n-1। ठीक है बेटा जी, होप कोई डाउट नहीं होगी। थैंक यू बेटा जी।